80 انیشیٹوز امپلیمنٹ کروائے, اور جس کے اندر کسان کارڈ ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو جس کے اندر ابھی تک تقریباً 42 بلین روپیز کی خریداری ہو چکی ہے. 6.25 لاکھ فارمر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 14 لاکھ درخواست آئی. گرین ٹریکٹر انیشیٹو 16 لاکھ ایپلیکیشن آئی. 7,000 ٹریکٹر ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. 9,500 ٹریکٹر جانا ہے. پہلی بار آپ کا سولرائزیشن, آپ کی 80% ڈیزل کے جو فارمرز تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. الیکٹرک ٹیوبلز کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. 50% سبسڈی دی جا رہی ہے. پہلی بار انٹرنشپ پروگرام انٹروڈیوس کیا. آج وہ بچے فیلڈ پر کام کر رہے ہیں, اور جب ان کی 1 سال بعد انٹرنشپ ختم ہوگی تو ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا پڑھائی کے ساتھ ساتھ. لائف سٹاک کارڈ انٹروڈیوس کیا جس کے تحت ابھی تک 1 لاکھ جانور رجسٹر ہو چکا ہے. 1 لاکھ جانور کے اندر سے 50,000 جانور 50,000 پلس جانور پائٹس کے تحت ٹیگ ہو چکا ہے, جس کے ذریعے ابھی تک 70 کروڑ روپے کی خریداری ہو چکی ہے. اور سپر سیڈر سب سے بڑا انیشیٹو جو کہ اسموگ اینٹی اسموگ ایک انیشیٹو تھا, جس کے لیے ہم نے اسموگ کا خاتمہ کرنا تھا, اور ہمارا وعدہ تھا کہ ہم 2 سال کے عرصے کے اندر 5,000 سپر سیڈر دیں گے. 1,000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کر دیا. آج 1,800 سپر سیڈر بک ہوا ہے, اور اگلی چاول کی فصل کے ہارویسٹ سے پہلے 5,000 سپر سیڈر دیں گے. سو ان شارٹ وائنڈنگ اپ کرتے ہوئے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وعدہ کیا ہے الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا اس کو وفا کرنے میں. مریم نواز شریف نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کے اندر ریولوشن لانی ہے. انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اور زراعت کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہمارا سلوگن ہے کہ اگر کاشتکار اس صوبے میں خوشحال ہوگا تو معیشت چلے گی اور پنجاب خوشحال ہوگا. بہت شکریہ. اچھا یہ بتا دیں کہ ایک منٹ جو ہے آرمی چیف سید جنرل آصم منیر اور ضلع پنجاب کا ایک بہت اہم اقدام تھا یہ جو کہ کل بلوچستان میں آپ نے بتایا. لیکن گزشتہ سالوں کی اگر ہم بات کریں تو کپاس میں پاکستان پوری دنیا میں 4تھے نمبر پر جو ہے وہ آ رہا تھا. لیکن اس سال کپاس کی کیا صورت رہے گی اور اس وقت جو ہماری زرعی لینڈ ہے پورے پنجاب میں وہ کتنی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, اور یہ آج کل زراعت کو لے کر یہ ہمارا ٹاپ کنسرن ہے. یہ صرف کنسرن چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے, بلکہ اس پہ جی پی آئی بھی بہت کلوزلی کام کر رہی ہے. مل کے کام کر رہے ہیں جی پی آئی اور ہم مل کے اس کاٹن کے ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں. کاٹن کے لیے میں نے جس طرح سیڈ کی بات کی, سیڈ کا ریوائول جی پی آئی کے تحت ایک ون آف دا انیشیٹو ہے. سیڈ کا ریوائول جب تک نہیں ہوگا, ایسا سیڈ جب تک نہیں آئے گا جو کہ پیسٹ ریزسٹنٹ اور جو کہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہے, کاٹن کی فصل اتنی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اب دنیا کاٹن کی کراپ کے اندر جی ایم او پر جا چکی ہے. ہم سی ایم صاحبہ کے ساتھ مجھے بھی اتفاق ملا, جب ہم چائنا گئے تو وہاں ہم بی جی آئی گئے. بی جی آئی کی ٹیم سی ایم صاحبہ کی دعوت پر پنجاب لاہور تشریف لائی, اور ہم نے سی ایم صاحبہ نے ان کو کہا کہ ہمارا جو کاٹن کا سیڈ ہے آپ اسے لے کر جائیں اور اس کو ہمیں جین ایڈٹ کر دیں, اور جین ایڈٹ کر دیں تاکہ وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو سکے, پیسٹ ریزیلینٹ ہو سکے, اور کاٹن کی فصل کامیاب ہو. اور ہماری ایگریکلچر کی ٹیکنیکل ٹیم اگلے 2 ہفتے کے اندر بی جی آئی دوبارہ واپس جا رہی ہے. اور ہم نے ارلی کاٹن ساؤتھ پنجاب کے اندر ہائیبریڈ رائس کوئی کراپ نہیں ہے, لیکن پروفیٹیبلٹی کے لیے فارمرز نے لگانا شروع کیا, اور واٹر جس طریقے سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے اس کا اندازہ فارمرز کو جلد ہونا چاہیے. ہم نے پہلی بار 10 لاکھ ایکڑ چیف منسٹر پنجاب کا دیا ہوا ٹارگٹ 10 لاکھ ایکڑ ارلی کاٹن لگانے جا رہے ہیں, جو کہ 15 فروری اور 31 مارچ کے درمیان لگتی ہے, جس کا اگر روٹین میں دیکھا جائے تو وہ 4 لاکھ ایکڑ سے کبھی زیادہ نہیں لگی 15 فروری سے 31 مارچ کے درمیان. تو ہم نے جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ کیا 10 لاکھ ایکڑ, 6 لاکھ ایکڑ زیادہ. اس کے لیے ہماری مسلسل ایفرٹ ہے اور کوشش ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنا گندم کا ٹارگٹ پورا کیا ہے اس طریقے سے ہم اپنا ارلی کاٹن کا ٹارگٹ پورا کریں گے. دو سوالات ہیں. ایک تو گندم کا سیزن بالکل قریب ہے, آپ نے اس کا بھی ہدف مقرر کر دیا ہے. کیا جو قیمت مقرر کریں گے اس کو ایک دفعہ لگ تو یہی رہا ہے کہ نہ کوئی پالیسی سازی اس والے سے آئے گی کہ آپ گندم نہیں خرید رہے, کیونکہ تیاری شروع ہو جاتی ہوتی ہے ابھی 1 ماہ قبل, لیکن بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی آپ گندم خریدنے کے موڈ میں ہے کسان سے.
किस तरह से उस रेट को जो आप तयन करेंगे उसको इंश्योर करेंगे कि वो उस पर एग्जीक्यूशन भी हो? और दूसरा ये बता दें कि ज़राअत के हवाले से कपास के इलाकों में गन्ने की फसल के बहुत ज़्यादा जो टेंडेंसी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, उसको कम करने के लिए अब आपने क्या खसूसी इक़दाम किए? मैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, मैं सबसे पहले गंदम की बात करूं। मैं ये आपसे देखें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो टारगेट दिया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्रोक्योरमेंट के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्राइस सेट करने के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम किसी तरीके से मार्केट के अंदर सेल परचेज के साथ नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट गंदम का खुद सेट किया 1 करोड़ 60 लाख एकड़। हमने खुद रिव्यू किया, सेल्फ असेसमेंट की, और उसको जब हम चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास लेकर गए तो हमने टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। हमने उस पर मेहनत करनी शुरू की, काम करना शुरू किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो इतने इनिशिएटिव्स किए हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अमल दरामद इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फार्मर्स को अपनी गवर्नमेंट पर, अपनी चीफ मिनिस्टर्स पर एतमाद था, जो कि उन्होंने वादा किया कि मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। और जब हमारा सर्वे हुआ क्रॉप रिपोर्टिंग का, तो हमारा सर्वे आया 16.25 मिलियन एकड़, सो 1 करोड़ 62 लाख एकड़। फेडरल गवर्नमेंट ने जब सर्वे किया सैटेलाइट के थ्रू, उस सर्वे के अंदर आया 1 करोड़ 62 लाख एकड़। और लिम्स ने जब सर्वे किया तो उसके अंदर अब सर्वे आया 1 करोड़ 71 लाख एकड़। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसके साथ साथ मैं आगे जो आपने बात की जोनिंग की और शुगर केन ऑफ कॉटन की, देखिए ये जोनिंग एग्रीकल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कराना लाजिम है। इसके ऊपर आप बहुत रैपिडली काम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन आप फार्मर को ये नहीं कह सकते कि तुम गन्ना छोड़ो और इसकी तरफ जाओ, वो कहेगा जी मुझे मुनाफा इसमें। अनटिल एंड अनलेस आप जोनिंग को इंसेंटिवाइज दे के इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे, जोनिंग अमल दरामद नहीं हो सकती। सो जो अर्ली कॉटन का हदफ हमने अपना सेट किया है, जो कि हमेशा 4 लाख एकड़ रहा है, हमने 10 लाख एकड़ किया है। उसके अंदर हमने ये इंसेंटिव दिया है कि जो फार्मर अर्ली कॉटन लगाएगा वो 1 से 12 एकड़ का फार्मर 5 एकड़ जो कॉटन लगाएगा उसको 5 एकड़ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसान कार्ड के थ्रू 5,000 रुपीज इंसेंटिव मिलेगा। सो ये एक हमने इंसेंटिव दिया है फार्मर्स को कि वो इस इंसेंटिव के थ्रू कम से कम उनकी सीड का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको इंसेंटिवाइज कर दिया है, ताकि वो इस इंसेंटिव के थ्रू अपनी कॉटन की फसल लगाए। जिस तरह आपने गंदम के हवाले से कहा, फिर बस कर दी। अच्छा, आपने गंदम के हवाले से कहा कि आपका टारगेट वो पूरा है, लेकिन जो मार्केट में स्टेक होल्डर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट उसको ओवर एस्टिमेट कर रही है या बता रही है। उसकी एक वजह कैद साली जो है साल कम हुई है, उसकी भी एक वजह। क्या गवर्नमेंट का उस हवाले से नंबर पूरा है? और खासकर जो अपनी असेसमेंट है, कैद साली होती है, उसका नुकसान क्या होगा? क्योंकि फूड सिक्योरिटी इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो गवर्नमेंट की वो तैयारी क्या है? आपने उसके ऊपर ही रहना है कि गंदम चले, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन भारत गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट गंदम की प्रोक्योरमेंट की बात करें, वो तो फूड डिपार्टमेंट था। तो क्या उस हवाले से कोई तैयारी है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट में काम करिए कि नहीं कर रही? मैं बिल्कुल आपके सवाल का खुशी से जवाब देना चाहता हूं। देखें, सबसे पहले ये सब फोर्सेस मानती हैं कि जो टारगेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने आपको इसलिए 3 सर्वेस बताए। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्रॉप रिपोर्टिंग का सर्वे बताया, मैंने आपको फेडरल गवर्नमेंट का सैटेलाइट का सर्वे बताया, मैंने आपको लिम्स का सर्वे बताया। और लिम्स के सर्वे के अंदर हमारे गिवन टारगेट से उसके अंदर आया 1 करोड़ 71 लाख एकड़। सो बेसिकली गिवन टारगेट से ज्यादा गंदम लगी। सो नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा कि कहत साली के मुतालिक, देखिए 2.5 माह हो गए हैं बारिश से नहीं हुई, तो एक ड्राउट लाइक सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई है, स्पेशली उन एरियाज के अंदर जो कि रेन फेड है। अब रेन फेड एरियाज वो एरियाज हैं जिस तरह थल का रीजन है, खुशाब, जंग, भक्कर, लैया, और रेन फेड एरियाज हैं जो पोटोहार का रीजन है। तो ये इन सब एरियाज की अगर आप गन्नम की फसल मिला लें तो 1 करोड़ 72 लाख एकड़ में से ये एरिया बनता है 15 लाख एकड़। सो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 करोड़ 72 लाख में से ये 15 लाख एकड़ है। हमने उधर अपनी टीम्स मौके पर भेजी हैं, एडवाइजरी जारी किया है, उनको बताया है कि जो जो रेमेडीज, देखिए क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और हम उससे बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, और हमें इसीलिए मैंने जिक्र किया उस जिद्दत का,
जो सीड्स के अंदर मैकेनाइजेशन है, जब तक उस चीज को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमने उनको एक एडवाइजरी जारी की और उसके अंदर उनको बताया कि आप ये स्टेप्स ले सकते हैं इस ड्राउट लाइक सिचुएशन से दूर निपटने के लिए। लेकिन जो हमने एरिया और क्रॉप को असेस किया उसके अंदर क्रॉप अभी मुतासिर नहीं हुई। और आज ही मैं सुबह सुन रहा था कि शायद बारिश की पेशन गोई है भी सही, फोरकास्ट है, और अल्लाह करे, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह करे बारिश हो और हमारी फसल जो है, जो टारगेट पूरा हुआ है उसके अंदर अच्छा ग्रेन पड़े और अच्छी यील्ड्स आए। आखिरी सवाल कर लें। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के वो फायदे भी बताए और कहा कि ख्वाब था तो देखा कि वो पूरा हो रहा है। सैलाब आ जाए, जल्जला आ जाए, कोई भी कुदरती आफात आ जाए तो इदारा जो है सबसे बढ़ चढ़ कर आगे होता है और इमदाद कर रहा होता है। ये काम जो ज़राअत है, मैशत है, इसकी बेहतरी तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तो आप नहीं समझते कि ये तो बेसिकली नाकामी है सिविल गवर्नमेंट की, को ज़राअत जैसे शोबे को भी आगे नहीं ले जा सकते और इदारा यहाँ पे आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। सो जीपीआई की जब आप बात करते हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के साथ अगर कोई काम करे, देखें ये क्राइसिस नहीं है इस वक्त, ये क्राइसिस, दो क्राइसिस हैं। आपके सवाल का जवाब है। नंबर 1 क्राइसिस है कि हमारी इकोनॉमी वहां नहीं है जहां होनी चाहिए थी। अब इसका कौन कसूरवार है, मैं पीछे हुकूमत पे जाके मलबा नहीं गिराऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना मटीरियल है कि अगर मुझे ये कवरेज की कमिटमेंट होती है तो मैं यहाँ 5 घंटे बैठ के भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने काम किया है। हमने अपनी लीडरशिप के विजन के तहत पंजाब के 10-11 महीने के अंदर मेहनत की है। तो आपका नंबर 1 इकोनॉमिक रिवाइवल, नंबर 2 इकोनॉमिक रिवाइवल लिंक्ड है मेजरली विद एग्रीकल्चर। नंबर 2 एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर नहीं क्रिएट करेंगे, अगर आप इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्रिएट करके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, चाहे वो मैकेनाइजेशन के अंदर हो, चाहे वो सीड के अंदर हो, चाहे वो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के अंदर हो, और आप एक छत के नीचे एग्री मॉल बनाकर फार्मर्स को तो सहूलत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सब मिलकर इकट्ठे होकर इसके एफर्ट नहीं करेंगे तो ये हम किसी जगह पहुंचेंगे नहीं। तो ये आपको मैं बताता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला जो एफर्ट्स की जा रही हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनमें कामयाब होंगे, और इस सेक्टर के अंदर, ज़राअत के अंदर पंजाब के काश्तकार को खुशहाल करेंगे, चाहे उसकी यील्ड्स हैं, चाहे उसकी मुनाफा बख्श उसकी जो जिन्स है उसका मुनाफा है, चाहे उसकी मैकेनाइजेशन है, और इसके लिए हम तेजी से काम भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सवाल रह गया।